Hello everyone. Hello everyone. Welcome to today's session on bookkeeping and accountancy. Whether your dreams of becoming financial expert or just wanted to understand the personal financial better, this session is a great start. Whether you are in the 11th standard or in first year of any professional courses or you are preparing for your UGC NET or SET. This topic is very useful for you all. बेसिकली हमारा एक परसेप्शन होता है कि अकाउंटेंसी जो है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और इसके थ्योरेटिकल पार्ट्स को हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करते. बट एज फार एज वी आर कंसर्न विद द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, इसका थ्योरेटिकल पार्ट पे क्वेश्चन जो है एनटीए बहुत बार एनटीए ने पूछा है. सो लेट्स स्टार्ट. Very first, meaning, definitions, and the objective of bookkeeping. Before starting any topic, very first, it is my recommendation कि इस टॉपिक का जो ओरिजिन है वो कहाँ से आया है उस पर अगर आप फोकस करो तो आपके लिए चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाती है. इफ़ यू टॉक अबाउट द बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, so in India during the Chandragupta Maurya's regime, Minister Kautilya wrote a book named Arthashastra, which means economics, where in the some reference can be traced regarding the way of maintaining accounting records. Afterward, it was called as Deshi Nama. In the earliest time of civilization, accounting was done by the agents who managed the properties of wealthy people. They prepared accounts periodically for the owners of the property. The records of debit and credit were found in the 12th century itself. So this is how this accounting procedure और accounting has been evolved in India. So starting में जो है जो wealthy peoples होते थे उनके property का record रखा जाता था और धीरे धीरे जो है वो accounting transactions and all ये सब चीज़ें आ गई. So if you talk about the bookkeeping, so it is a systematic process of recording all the financial transaction of the business. So you are just keeping a record of business. सिर्फ आपने क्या किया, रिकॉर्ड रख लिया बिजनेस का, वो क्या बन गया, बुक कीपिंग. इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, सो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू कीप द कंप्लीट एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमैटिक, orderly and logical manner. All the business transactions are to be recorded date wise and account wise. It is a permanent record used to do bookkeeping to ascertain the profit or losses over the period to determine the financial position of the business. अब बात करते हैं कि भाई ये क्यों इम्पोर्टेंट है. तो वेरी फर्स्ट हम जो है एक रिकॉर्ड आप मेंटेन हो जाता है. सो फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप उस रिकॉर्ड को चेक कर सकते हो, देख सकते हो. द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इट इज ऑन हैंडी. आप कभी भी जो है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को आप यूज कर सकते हो फॉर ascertaining your profit or loss or any other decision making. It helps in your decision making. आप इसके बेसिस पे जो है अलग अलग डिसीजंस ले सकते हो. कंट्रोलिंग, बिजनेस को अगर आपको कंट्रोल करना है, सो इफ यू हैव मेंटेन योर बुक कीपिंग, सो बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर आपने मेंटेन रखा है तो उसके हेल्प से आप जो है कंट्रोल कर सकते हो बिजनेस को. एविडेंस, इट्स बिकम अ प्रूफ और एविडेंस सबूत बन जाता है आपका ये. एंड टैक्स लायबिलिटी, तो एक्चुअल में कितना टैक्स आपको पे करना है ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इफ यू आर डूइंग अ बुक कीपिंग. Now, difference between bookkeeping and accountancy. In 11th standard itself, we learned this bookkeeping and accountancy में difference क्या है. But again, है ना, UGC नेट के स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स से भी अगर मैं पूछूं कि दोनों में डिफरेंस क्या है तो समटाइम्स वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है. सो हियर if you talk about the meaning of bookkeeping, so it says it is concerned with the recording and classifying the business transactions. So यहाँ पे सिर्फ बात आई है recording and classifying की. Whereas when we are talking about the accountancy, so it is related with the recording, classifying, summarizing, analyzing and interpreting the financial data. So यहाँ पे क्लासिफिकेशन भी आएगा, यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी आएगा, यहाँ पे समराइजिंग भी आएगा, यहाँ पे आप फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज भी करोगे और यहाँ पे आपका इंटरप्रिटेशन भी होगा. बुक कीपिंग जो है इट इज़ वेरी सिंपल एंड रूटीन प्रोसेस. वहीं पे अकाउंटिंग जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स और एनालिटिकल टास्क होता है यहाँ पे, क्योंकि एनालिसिस भी एक प्रोसेस का पार्ट है. इट इज़
बुक कीपिंग की बात करें तो बुक कीपिंग जो है वो फोकस करता है डेटा एंट्री में एंड डॉक्यूमेंटेशन में। वहीं पर अकाउंटेंसी की बात करें तो अकाउंटेंसी जो है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट इज योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड योर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, है ना। मेन फोकस हमारा वो होता है। बुक कीपिंग जो है वो फर्स्ट स्टेप है अकाउंटिंग प्रोसेस का, एंड अकाउंटिंग जो है ये बेसिकली हम सपोर्ट्स करता है फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में। सो जो ब्रॉडर कंसेप्ट है दैट इज अकाउंटेंसी, एंड अकाउंटेंसी का जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज योर बुक कीपिंग। सो बुक कीपिंग से हम स्टार्ट करते हैं, और अकाउंटेंसी जो हमारा ब्रॉडर कंसेप्ट है। सो बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी, नॉट अकाउंटेंसी इज अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। ये क्लियर रखना बच्चों, ये अक्सर जो है कंफ्यूजन रहता है एक्सपीरियंस के बीच में कि बुक कीपिंग का पार्ट अकाउंटेंसी है, अकाउंटेंसी का पार्ट बुक कीपिंग है। सो अकाउंटेंसी जो है वो ब्रॉडर कंसेप्ट है, और अकाउंटेंसी का जो पार्ट है दैट इज बुक कीपिंग। सो लेट्स मूव टू मीनिंग and definition of accountancy. So accountancy is the comprehensive process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing and interpreting financial information to assist informed business decisions. It provides insights into profitability, liquidity and financial stability through structured financial statements and analysis. So देखिए यहाँ पर है ना, इसके मीनिंग में आप देखोगे यहाँ पे आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन हो रही है एट दिस पॉइंट। सो ये सब मिला के आपका अकाउंटेंसी हो रहा है। वहीं पे बुक कीपिंग की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ हमारा आता है कि रिकॉर्डिंग, सिस्टमैटिक वे ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। द अमेरिकन Accounting Association defined accountancy as the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in the terms of money. Yes, obviously जो भी आप transactions record करेंगे वो in terms of money होना चाहिए। अगर money का involvement नहीं है या money के साथ आप उसको measures नहीं कर सकते तो फिर उसकी entry pass नहीं होती है। जब मैं concepts बताऊंगा उस वक्त इस चीज को और अच्छे से clear कर दूंगा। Transactions and event which are of the financial characters and interpreting the results thereof. Basics of accounting system. So very first basis is cash basis. Records transaction only when the cash is received or paid. Accrual basis records revenue and expenses when they are earned or incurred regardless of cash flow. Concepts जब करवाऊंगा उस वक्त उसको और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। फिलहाल के लिए जो है सिर्फ मैं इसको ओवरव्यू करके लेके जा रहा हूँ। हाइब्रिड सिस्टम, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैश एंड एक्रूअल बेसिस एज पर द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट। सो समटाइम्स हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो करते हैं वो कैश बेसिस पे करते हैं, भाई एक्चुअल में कैश रिसीव हुआ है मेरे हाथ में आया तो ही मैं उसकी एंट्री पास करूंगा, और समटाइम्स जो है एक्रूअल बेसिस पे सिर्फ मैंने अर्न कर लिया है या कोई एक्सपेंसेस इनकर्ड हो चुका है तो मैं उसकी एंट्री पास कर देता हूँ। और समटाइम्स हाइब्रिड्स, कुछ कैश बेसिस पे होंगे, कुछ एक्रूअल बेसिस पे। अब कौन सी चीजें कैश बेसिस पे होगी, कौन सी चीजें एक्रूअल बेसिस पे होगी, ये सबका डिटेल हम लोग जब कंसेप्ट करेंगे इसके बाद ये उस पर मैं और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। सो वेरी फर्स्ट, रिलायबिलिटी। Accounting information must be accurate, verifiable and faithful representation of economic event. जो भी अकाउंटिंग एंट्रीज आप पास करते हो ये रिलायबल होना चाहिए, ऐसा हो जिसपे सामने वाला ट्रस्ट कर सके। आपने बार बार एंट्रीज को कैंसिल किया है और लिखा है तो ऐसे में जो है सामने वाला जो है उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। वो अकाउंटिंग आपने मेंटेन करने के बाद भी वो ना के बराबर है। आपने 0 को 8 बनाया है या 3 को 8 बनाया है, ऐसे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं होते। अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो भी होंगे वो रिलायबल होने चाहिए, जिसके आप रिलाय कर सकते हो, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो। रिलेवेंस, इंफॉर्मेशन मस्ट बी इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग बाय हैविंग प्रेडिक्टिव और कंफर्मेटरी वैल्यूज, है ना। ऐसा हो जो कि रिलेवेंस हो, जिसका आपके बिजनेस के साथ रिलेवेंस हो, आपके अकाउंटिंग पीरियड के साथ रिलेवेंस हो। ऐसे ही कोई भी एंट्री पास नहीं करनी है। अंडरस्टैंडेबिलिटी, है ना, जो भी इंफॉर्मेशन आपने पुट अप किया है, जो भी आपने रिकॉर्ड मेंटेन किया वो इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, सामने वाला आसानी से समझ सके। भाई रेंट, आप अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज जब आएंगे उस वक्त मैं कुछ टर्म्स आपको बताऊंगा, तो फिलहाल के सिर्फ आपको बता दे रहा हूँ कि अकाउंटिंग में जितने टर्म्स होते हैं सारे टर्म्स का मीनिंग अलग होता है। व्हेन वी आर सेइंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो उसका मतलब अलग हो जाता है। व्हेन वी आर सेइंग वेजेस
तो उसका मतलब अलग हो जाता है, व्हेन वी आर सेइंग सैलरी तो उसका मतलब अलग हो जाता है। वहीं पर हम बात करें अगर एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, तो शायद तनख्वाह हम किसी सब सारी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, सैलरी के लिए भी हम तनख्वाह वर्ड यूज़ करते हैं और वेजेस के लिए भी हम तनख्वाह वर्ड यूज़ कर लेते हैं। बट अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता है, अकाउंटिंग में वेजेस का मतलब अलग हो गया और सैलरी का मतलब अलग हो गया। सो ये हमको यहाँ पर जो है थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना होता है, अंडरस्टैंडेबिलिटी एकदम क्लियर होना चाहिए कि ये जो रिकॉर्ड मेंटेन किया वेदर इट इज रिलेटेड टू वेजेस और वेदर इट इज रिलेटेड टू सैलरी, वेदर इट इज रिलेटेड टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस और इट इज रिलेटेड टू योर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर जो है इजीली समझ में आए। कंपेरेबिलिटी है ना, जो भी इंफॉर्मेशन है वो कंपेरेबल होना चाहिए, आप जो इसको इजीली कंपेयर कर सकते हो लास्ट ईयर के साथ, प्रीवियस क्वार्टर्स के साथ एंड सो ऑन। नाउ basic accounting terminologies. So very first it's transactions. So transactions, it is exchange of goods and services between two person or parties for money or money's worth is known as transaction, है ना। जब भी आप किसी गुड्स या सर्विस का एक्सचेंज करते हो दैट इज नोन एज ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे या तो मनी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए या फिर मनी इज वर्थ, या ऐसी कोई चीज जो कि मनी के इक्विवेलेंट हो, मनी के बराबर कोई वाली चीज हो। अब यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स में दो टाइप आ जाते हैं आपके, एक मॉनिटरी ट्रांजेक्शन एंड सेकेंड वन इज नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। मॉनिटरी ट्रांजेक्शन जहाँ पे मनी का इन्वॉल्वमेंट होगा, नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन जहाँ पे मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। यू कैन से बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में आपको पता होगा कि वहां पर ऐसा होता था कि एक गुड्स के बदले दूसरा गुड्स के साथ एक्सचेंज होता था। जैसे चावल चाहिए, चावल के साथ आप जो है गेहूं को एक्सचेंज कर सकते हो, गेहूं के साथ आप दाल को एक्सचेंज कर सकते हो, इस तरह से। सो वो हो गया आपका नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। Capital and drawings. So any amount which is invested in your own business is known as capital. अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि एनी अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड इन योर ओन बिजनेस, तो लोगों को अक्सर ये गलतफहमी हो जाती है कि या फर्स्ट टाइम जो इंट्रोडक्शन किया वही आपका कैपिटल होगा। नो डियर, ऐसा नहीं है। फर्स्ट टाइम या नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जितने बार भी अपने बिजनेस में फंड को इन्वॉल्व करोगे वो कैपिटल ही कहलाएगा। फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ दैट इज फर्स्ट टाइम कैपिटल, बाद में इन बिटवीन आपने इंट्रोड्यूस किया इट विल बी कॉल्ड एज फर्दर कैपिटल। ड्राइंग्स, सो हियर जब कंसेप्ट करवाऊंगा उस वक्त आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि यहाँ पर अकाउंटिंग में जो है अगर बिजनेसमैन ने अपने खुद के पर्सनल यूज के लिए कोई अमाउंट अगर विड्रॉ किया है बिजनेस से, वंस अगेन आई एम सेइंग बिजनेसमैन ने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कोई अमाउंट विड्रॉ किया है या कोई गुड्स विड्रॉ किया है, दैट अमाउंट और दैट अमाउंट ऑफ गुड्स इज ट्रीटेड एज ड्राइंग। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, अगर आपने किसी को उधारी दिया है जिसको हम लोग कर्जा दिया है, या फिर हम बोल सकते हैं कि आपने किसी को गुड्स जो है क्रेडिट बेसिस पे सेल किया है, उसको हम लोग बोले वो आपका बन जाएगा डेटर्स। आपने किसी से अगर कर्जा लिया है तो वो आपका बन जाएगा क्रेडिटर्स। डेटर्स आपने किसी को उधारी दिया, क्रेडिटर्स किसी ने आपको उधारी दिया। एक्सपेंडिचर एंड टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। सो एक्सपेंडिचर बेसिकली खर्चा, अगर जो भी आप बिजनेस के में खर्चा करते हो दैट इज नोन एज एक्सपेंडिचर। अब टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर की बात करें, सो as far as we are concerned about the accountancy, so we have three types of expenditure. Very first capital expenditure, second one revenue expenditure, and third is deferred revenue expenditure. Capital expenditure, the nature of capital expenditure it is one time expenditure and the benefit of capital expenditure is for longer time. यहाँ पे क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में कि आपने एक बार खर्चा किया उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टाइम के लिए मिलता है। आपने बिल्डिंग परचेज कर लिया, आपने मशीनरी परचेज कर लिया, ये आप एक बार खर्चा करते हो और मशीनरी आपका जो है 8 साल 10 साल तक चलता है। आपने बिल्डिंग परचेज किया तो आपने एक बार परचेज किया, ये बिल्डिंग जो है 20 साल 25 साल 20-25 ईयर्स तक जो है आपके साथ रहेगी। सो इसका जो बेनिफिट होता है लॉन्ग टाइम के लिए होता है, दैट इज व्हाट कैपिटल एक्सपेंडिचर इन। बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज रिकरिंग इन नेचर एंड द बेनिफिट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज वेरी शॉर्ट टाइम। सो यहाँ पर ये होता है कि ये रिकरिंग नेचर का होता है। रिकरिंग नेचर का होने का मतलब क्या हो गया कि आप जो एक टाइम पीरियड के बाद आपको ये एक्सपेंस वापस से करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बात करते हैं सैलरी, तो सैलरी ऐसा है कि आपको एवरी मंथ आपके जो एम्प्लॉयज है उनको आपको सैलरी पे करना है। अगर आपने सैलरी टाइम पे नहीं पे किया तो एम्प्लॉयज जो है डिमोटिवेटेड हो जाएंगे और वो जो है ठीक से अपना काम नहीं करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
So what is deferred revenue expenditure? So the nature of deferred revenue expenditure is one time, but basically in normal day-to-day activity or in normal course of business, it is recurring in nature. For example, heavy advertisement expenses. So advertisement expenses जो होता है वो normally recurring nature का होता है. It's normally recurring in nature, but heavy advertisement expenditure it's one time. सो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं कि जैसे आप लोगों ने एक सुना होगा लिरिक्स निरमा वॉशिंग पाउडर का. सो वॉशिंग पाउडर निरमा ये जो लिरिक्स है ये आप बचपन से सुनते हुए आ रहे हो और आज भी सुन रहे हो. एट द टाइम ऑफ मेकिंग दिस लिरिक्स निरमा वॉशिंग पाउडर ने जो है काफ़ी ज़्यादा ह्यूज एक्सपेंस किया है. अब ये जो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज एक्सपेंस किया है वो एवरी ईयर तो नहीं करने वाली है, रिकरिंग नेचर में भी नहीं करने वाली है. तो ये जो एक्सपेंस है ये एक्सपेंस को हम लोग बोलेंगे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स. और ये एक्सपेंसेस का जो है वो सिंगल ईयर में जो है रिकवर नहीं होता है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं फिक्टिशियस एसेट्स में शो करते हैं और एवरी ईयर इस एक्सपेंसेस को हम राइट ऑफ करते हैं. So this is how deferred revenue expenditures works. Examples के तौर पे deferred advertisement expenses, preliminary expenses, etc. So next, cash discount and trade discount. So basically cash discount is the amount deducted from the final amount due at the time of receipt. It is the concession given for encouraging prompt payment. कैश डिस्काउंट जो मिलता है वो कस्टमर्स को इसलिए मिलता है कि वो प्रॉम्प्ट पेमेंट कर रहा है, ऑन द स्पॉट पेमेंट करने वाला है. और वहीं पर जो ट्रेड डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट इसलिए प्रोवाइड किया जाता है कि कस्टमर्स जो है वो नंबर ऑफ यूनिट्स और एल्स वी कैन से कि क्वांटिटी ऑर्डर्ड जो कर रहा है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वांटिटी हमारा ऑर्डर हो जाए, ये मकसद से हम जो ट्रेड डिस्काउंट देते हैं. दोनों में कंसेप्चुअली यही फर्क है. नाउ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें तो कैश डिस्काउंट का जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हम कैश डिस्काउंट को मेंशन करते हैं, वेयर एज ट्रेड डिस्काउंट को हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में मेंशन नहीं करते. सो जब भी अकाउंटिंग एंट्रीज पास करेंगे कैश डिस्काउंट की एंट्री पास करना है और ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री पास नहीं करेंगे. द नेक्स्ट इज सॉल्वेंट एंड इंसॉल्वेंट. whenever the amount of assets is more than your liability, it is known as solvent, and if the amount of liabilities is more than your assets, it will be called as insolvent. जब आपके assets की वैल्यू ज़्यादा होगी तो आप solvent कहलाओगे, और जब आपके liabilities की वैल्यू ज़्यादा होगी तो आप insolvent कहलाओगे. आपकी liability ज़्यादा है, कर्जा ज़्यादा है, तो आप बिजनेस को रन नहीं कर सकते, तो ऐसे केस में हम उसको insolvent बोलते हैं. जब आपके एसेट्स की वैल्यू ज्यादा है, आपके पर कर्जा कम है, तो यह हो जाएगा आपका सॉल्वेंसी. अकाउंटिंग ईयर एवरी ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च. 1 अप्रैल से आपका अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है और 31 मार्च को आपका अकाउंटिंग ईयर एंड होता है. ट्रेडिंग कंसर्न एंड नॉट फॉर प्रॉफिट. ट्रेडिंग कंसर्न व्हेन यू आर डूइंग अ बिजनेस फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट, जब आपका मोटिव जो है वो प्रॉफिट अर्न करना है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग कंसर्न. एंड if the motive is to provide service, जब भी आपका मोटिव जो है सर्विस प्रोवाइड करना है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, so इसको हम बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न. गुडविल. इट इज द मॉनिटरी टर्म्स फॉर योर बिजनेस रेपुटेशन. आपका जो मार्केट में रेपुटेशन है उसका जो मॉनिटरी टर्म है दैट विल बी नोन एज गुडविल. प्रॉफिट और लॉस. whenever the revenues are more than your expenditures, जब आपका इनकम आप जो है आपके एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होगा तो आप प्रॉफिट अर्न करोगे. वही इसके अपोजिट जब आपका एक्सपेंसेस जो है वो ज़्यादा होगा आपके रेवेन्यूज से, तो आपको लॉस इनकर होता है. एसेट्स, लायबिलिटीज एंड नेटवर्थ. सो एनी फिजिकल थिंग्स और राइट ओन दैट हैज अ मॉनिटरी वैल्यू is called as an assets. The ownership of assets must be with the business. For example, land, goodwill, patent, computers, etc. कोई भी चीज जिसका ओनरशिप जो है वो कंपनी के पास है, ऑर्गेनाइजेशन के पास है, आपके बिजनेस के पास है, और उसको फ्यूचर में आप क्या कर सकते हो, कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर वो राइट ना वो कैश के फॉर्म में है, तो उसको हम बोलेंगे एसेट्स.
इसी के अपोजिट अगर फ्यूचर में आपको कैश पे करना है किसी भी रीजन से, तो वो आपके लिए बन जाएगा लायबिलिटी। नेटवर्थ की बात करें, सो इट इज द डिफरेंस बिटवीन योर एसेट्स एंड योर लायबिलिटीज, दैट इज नेटवर्थ। टाइप्स ऑफ एसेट्स, सो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स, जिसको हम नॉन करेंट एसेट्स भी बोलते हैं, करंट एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। अकाउंटिंग में याद रखना, अकाउंटिंग में जब भी हम लोग शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, यहाँ पे जो टाइम फ्रेम है दैट इज 1 ईयर। अगर 1 ईयर से ज्यादा का पीरियड है तो हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म, 1 ईयर से कम का पीरियड है तो हम बोलेंगे इट्स अ शॉर्ट टर्म। सो द फिक्स एसेट्स, जब भी कोई एसेट्स आप लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए हेल्ड करते हो, लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए परचेज करते हो, दैट विल बी नोन एज फिक्स एसेट्स और नॉन करेंट एसेट्स। इफ द एसेट्स इज फॉर लेस देन 1 ईयर और लेस देन 12 मंथ, इट विल बी नोन एज करेंट एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स की बात करें तो ऑलरेडी मैंने जब टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर में डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सप्लेन किया था, उस वक्त मैंने आपको हिंट दिया था कि डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो भी होते हैं उसको हम लोग फॉर टाइम बीइंग फिक्टिशियस एसेट्स में शो करते हैं, और एवरी ईयर उसका एक पार्ट जो है वो राइट ऑफ होता है, क्योंकि जो एक्सपेंडिचर जो हैवी एक्सपेंडिचर्स है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है, उसको सिंगल ईयर में चार्ज करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो पता चलेगा कि फर्स्ट ईयर में कंपनी बंद हो रही, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वो जो एक्सपेंडिचर्स है इसको हम लोग डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को हम जो है फिक्टिशियस एसेट्स में शो करते हैं, और एवरी ईयर उसका एक पार्ट डिडक्ट करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। टाइप्स ऑफ लायबिलिटी की बात करें तो दो टाइप्स की लायबिलिटी हमारे पास, एक फिक्स लायबिलिटी और एक करंट लायबिलिटी। फिक्स लायबिलिटी को हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी बोलते हैं, बोला जाता है, और करंट लायबिलिटीज शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Accounting concepts, conventions and principles, very much important from net perspective। concepts, conventions and principles के ऊपर questions पूछा जाता है, और again once again I am saying, जब 11th standard में या first year of your graduations, if you are doing if you have completed your professional degrees, तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये होता है कि उस वक्त हमने कंसेप्ट से ध्यान नहीं दिया था, ये सोच के हमारा उस वक्त एटीट्यूड ये था कि अकाउंट्स जो है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, और हमने कंसेप्ट, कन्वेंशंस और प्रिंसिपल्स ये सब में उतना ध्यान नहीं दिया होता है। सो नाउ ये सब चीजें आपको पता है, ऐसा कुछ नया नहीं है, ये सब चीजें आपने जब सम्स किया है उस वक्त आपने कहीं ना कहीं इसको यूज किया होगा, बट प्रॉब्लम यही है कि आपको एज अ कंसेप्ट कभी आपने इसको जो है कंसिडर नहीं किया था। सो स्टार्ट करते वेरी फर्स्ट इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट implies that the business unit is separate and distinct from the owners and owners। so यहाँ पे इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो आपका ओनर है, बिजनेस ओनर है, वो एक अलग एंटिटी है, एंड द बिजनेस इज द सेपरेट एंटिटी। सो बिजनेस का जो भी एक्सपेंस है, बिजनेस का जो भी इनकम है, दैट इज रिलेटेड टू बिजनेस ओनली। नाउ द बिजनेसमैन इज सेपरेट, और यही रीजन होता है कि जब बिजनेसमैन अपने कुछ पर्सनल यूज के लिए अगर कोई अमाउंट विड्रॉ करता है बिजनेस से, तो उसको हमें ड्राइंग बोलते थे, ड्राइंग बोला जाता है। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज में भी मैंने आपको बताया कि इट्स कॉल्ड एज ड्राइंग, इट इज। सो यह दोनों भी जो है वो सेपरेट है, और यही रीजन है कि कैपिटल का जो अमाउंट होता है वो हम लायबिलिटीज में शो करते हैं, बिकॉज बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है कि बिजनेसमैन को वो पैसा उसको रिटर्न करना पड़ेगा। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, जब भी आप कोई अकाउंटिंग एंट्रीज पास करोगे तो वो जो है जो भी रिकॉर्ड्स हो रहा है वो मनी के साथ मेजर्स होना चाहिए। अगर वहां पे इस ट्रांजैक्शंस में मनी का रोल नहीं है, या वो ट्रांजैक्शन ऐसा है जिसको आप मनी के साथ मेजर्स नहीं कर सकते हो, तो उसकी एंट्री पास नहीं होती है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होगा। द नेक्स्ट कॉस्ट कंसेप्ट, so an asset is recorded in the books on the basis of historical cost, that is the acquisition cost, and the cost of acquisition will be based for all the further accounting। यहाँ पे जब भी आप एंट्री करोगे तो आपका जो भी एसेट्स का रिकॉर्ड होगा वो हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे रहेगा। फॉर एग्जांपल, मैंने एक मशीनरी परचेज किया 3 लाख रुपीस में, और आफ्टर 1 ईयर उसका मार्केट वैल्यू जो है 3 लाख से रिड्यूस होकर 1 लाख हो गया। तो मार्केट वैल्यू भले से उसका 1 लाख हुआ है, बट मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी एंट्री अभी भी 3 लाख के बेसिस पे ही करूंगा, और जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज करना है वो डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। द नेक्स्ट कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या कहता है कि आपका जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज आपने अडॉप्ट किया है, अकाउंटिंग प्रोसीजर आपने अडॉप्ट किया है, वो कंसिस्टेंट रहना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल,
डेप्रिसिएशन में हमने दो मेथड पढ़ा, एक स्ट्रेट लाइन मेथड, एक डब्ल्यूडीवी मेथड। तो अगर मैंने डब्ल्यूडीवी मेथड्स को अडॉप्ट किया है, सो नेक्स्ट ईयर भी मुझे डब्ल्यूडीवी मेथड्स के बेस पे ही जो है डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। अगर मैंने स्ट्रेट लाइन को एक्सेप्ट किया है, सो नेक्स्ट ईयर भी मुझे स्ट्रेट लाइन के बेस पे ही करना है। या फर्दर दूसरे भी कोई अकाउंटिंग प्रोसीजर्स है, अगर पॉलिसीज, अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है वो कंसिस्टेंट रहने चाहिए। द नेक्स्ट, कंजर्वेटिज्म। While recording the business transaction, we have to anticipate no profit but provide all the possible losses। तो जब भी आप कोई एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि जो है देयर आर चांसेस टू फेस लॉसेस ऑल्सो। ऐसा ना हो कि आप हमेशा प्रॉफिट ही सोचते रहो, तो कैसा होता है कि जब आप पॉजिटिव पॉजिटिव हमेशा सोचते हो और जब रिजल्ट अगर आपका वो उस लेवल का नहीं मिलता तो आपको कहीं ना कहीं हर्ट होता है। आपने अपनी स्कूल लाइफ में देखा होगा कि एक स्टूडेंट है जो है ना, जिसके लिए पास होना सबसे बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, तो 35% लेके पास होकर सबको पार्टी देता है कि भाई मैं पास हो गया। वहीं पे एक स्टूडेंट होता है जो कि बहुत पॉजिटिव रहता है, 95% उसका टारगेट होता है, 98% टारगेट होता है, 99% टारगेट होता है, और गलती से उसको मिल जाता है 70% या 80%, तो वो कोने में चुपचाप बैठे मुंडी नीचे करके बैठा रहता है। ऑल्दो उसको 80-90% में भी क्लास में फर्स्ट आया है वो, बट फिर भी उसका मुंह लटका हुआ है। तो रीजन क्या है कि क्योंकि उसने जब वो स्टडीज कर रहा था या जब वो रिजल्ट ले रहा था, उसके माइंड में एक सेट था कि मुझे जो है प्रॉफिट ही होगा, मुझे जो है रिजल्ट मेरा अच्छा ही आएगा। अब वो जितना उसने एक्सपेक्टेशन था उतना उसका फुलफिल नहीं हुआ। सो वाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस आपको सारे पॉसिबल लॉसेस कंसिडर करने होते हैं। गोइंग कंसर्न, it is the basic assumptions that business is a going concern and will continue its operation for futures। तो ये आपका जो बिजनेस रहेगा वो फ्यूचर में भी कंटिन्यू करेगा, ये आपका एक अजम्पशन है, इसके बेसिस पे ही सारे एंट्रीज रिकॉर्ड होते हैं। और यही रीजन होता है कि जो करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होता है वो नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक बन जाता है, या जो भी क्लोजिंग बैलेंस करंट ईयर में आपने मेंशन किया वो नेक्स्ट ईयर में आपका ओपनिंग बन जाता है। रियलाइजेशन कंसेप्ट, income is recorded only when it is realized, that is either it is received or earned। revenues are recorded only when the sale are affected or the service are rendered। आपने सेल कर दिया, आप उसकी एंट्री पास कर सकते हैं। आपने जो है सर्विस रेंडर कर दिया, उसकी एंट्री पास कर दोगे। बट अगर आपको सिर्फ ऑर्डर मिला है, अभी तक सेल हुआ नहीं, सिर्फ आपको ऑर्डर मिला है, तो उसकी एंट्री पास नहीं करना है। दैट इज व्हाट रियलाइजेशन कंसेप्ट इज। द नेक्स्ट, accrual concept, income is recorded when it is accrued, that is earned, and the expenses are recorded when they accrue, become payable ना। तो जब भी आपका इनकम कोई अक्रू होता है उसकी एंट्री पास कर देनी, जब भी कोई एक्सपेंडिचर्स आपका अक्रूड होता है तो आपकी उसका एंट्री पास करता है। डुअल एस्पेक्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि कोई भी चीज जो उसका दो इफेक्ट होता है। every transactions or event has two aspects, that is dual effect। for example, if Mr. A started business with cash rupees 5 lakh, on one hand the business gets cash and the other hand a liability is arises, that is the business has to pay Mr. X the same amount। तो जब भी आप परचेज भी कर रहे हो, तो अगर आपने परचेज किया तो कोई एक पर्सन होगा जो कि सेल भी कर रहा है। तो यहाँ पे डुअल एस्पेक्ट्स, अगर परचेज होगा तो कहीं ना कहीं से सेल होता होगा, अगर आपने रिसीव किया तो कोई ना कोई तो होगा जो पेमेंट कर रहा है। डिस्क्लोजर, द अकाउंट्स मस्ट बी डिस्क्लोज ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन। The accounting reports should disclose a full and fair information to the related parties। The financial positions and the performance should be disclosed very honestly to all the users। Material information, so now material information क्या होता है? What is material? So it is not raw material or some other material। Materiality concept, it's again one concept of accounting। What it says कि वो amount जो कि आपको feel होता है, or else we can say financial statement should disclose all the material items which might influence the decisions of the users of financial statements। so अगर कोई भी चीज ऐसा है जो कि आपके डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट कर सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मटेरियल फिगर। फॉर एग्जाम्पल, एक बेसिक सा एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर सपोज कि आपके पास से 1 रुपीज जो है वो कहीं पे खो गया, तो 1 रुपीज खो गया तो आप 2-5 मिनट सोचोगे भाई कहाँ पे खोया, और फिर उसके बाद आप उसको भूल जाओगे। वहीं पे 10 रुपया खोता है तो आप थोड़ा ज्यादा सोचते हो। 100 रुपया, 100 रुपीज अगर आपके पास से खो जाता है तो और ज्यादा सोगे। 1000 खो जाता है तो और ज्यादा सोचोगे। 10,000 खो जाएगा तो और सोचोगे।
है ना, एंड सो ऑन। तो जितना ज्यादा बड़ा फिगर होता है उतना ज्यादा आपके लिए वो अफेक्ट करता है आपके डिसीजन मेकिंग को। सो नाउ दिस इज व्हाट मटेरियल इज। जो फिगर आपको फील होता है, जो फिगर आपको अफेक्ट करता है, दैट इज मटेरियल फिगर। अब कुछ चीजें ऐसी होती है आपके बिजनेस में, जैसे कि जो छोटे मोटे खर्चे, दैट इज व्हाट सन्ड्री एक्सपेंसेस। अब सन्ड्री एक्सपेंसेस को हम लोग कभी क्लासिफाई नहीं करते सन्ड्री एक्सपेंसेस में क्या क्या एक्सपेंस किया, क्यों? दैट वो छोटा मोटा खर्चा है, वो इमटेरियल है हमारे लिए, वो मटेरियल फिगर नहीं है। बट जो मटेरियल इमटेरियल चीजें हैं, छोटे मोटे खर्चे, इनको सबको जब ऑल टुगेदर एक साथ टोटल करता हूं मैं, तो एक मटेरियल फिगर बन जाता है। और मैंने बोला कि जितने भी मटेरियल फिगर है उसकी उसका डिस्क्लोजर होना चाहिए, उसकी एंट्री होनी चाहिए। सो अब इसकी एंट्री हम लोग पास कर देते हैं सन्ड्री एक्सपेंसेस के नाम पे। नेक्स्ट, मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है? व्हाट इट सेज कि जो भी आप एंट्रीज पास कर रहे हो वो आपके अकाउंटिंग ईयर्स के साथ मैच होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई एंट्रीज कोई दूसरे अकाउंटिंग ईयर का आपने यहाँ पे पास कर दिया। सो ऑल द एंट्रीज शुड मैच विद द अकाउंटिंग ईयर्स प्रॉपरली। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड आईएफआरएस। So accounting standards, it says country specific rules that guide financial reporting and consistency within the jurisdiction। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो कंट्री है उस कंट्री के स्पेसिफिकली कुछ रूल्स, कुछ गाइडलाइंस रहते हैं रिलेटेड टू अकाउंटेंसी। इट इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। फॉर इंडिया, ICAI, that is Institute of Chartered Accountant of India, is setting all the accounting standards. IFRS, International Financial Reporting Standards. Global standards aim at uniformity and transparency in the financial reporting across the countries. सो ग्लोबल लेवल पे सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक साथ मैच हो, यूनिफॉर्मिटी आए, ये इसका मकसद है IFRS का। इसके लिए इसने कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मेंशन किए। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्यों इतना जरूरी है इसको लर्न करना या इसको समझना? बिकॉज दिस स्टैंडर्ड्स एनहांस कंपेरेबिलिटी, reliability and accountability in the financial statement, crucial for stakeholders worldwide। so worldwide level पे जो है हमारा यहाँ पर importance दिख जाता है। now accounting standards issued by ICAI, because we are living in India, so in India ICAI is issuing accounting standards। so what here I have classified accounting standards categorized into 4 categories। very first categories is डिस्क्लोजर एंड वैल्यूएशन। सबसे पहला कैटेगरी जो मैंने बनाया है दैट इज डिस्क्लोजर एंड वैल्यूएशन, जिसमें वेरी फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, दैट इज डिस्क्लोजर requires business to disclose all the significant accounting policies like depreciation method, valuations of inventory used in the preparation of financial statements etc। तो यहाँ पे क्या होता है कि सारा इंफॉर्मेशन, जो भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज है, वो सारे इंफॉर्मेशन, सारे पॉलिसीज आपको यहाँ पर डिस्क्लोज करने होते हैं। AS2, valuation of inventories, it specifies that inventory should be valued at the lower cost or net realizable value। तो इसके अकॉर्डिंगली क्या है, जो भी लोएस्ट कॉस्ट है, मार्केट वैल्यू और द कॉस्ट वैल्यू, जो भी लोएस्ट वैल्यू रहेगा उसमें आपको जो है इसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है। AS3, cash flow statements, it requires entities to present inflows and outflows of the cash under operating, investing and financial activities। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटी। वेरी फर्स्ट सबसे पहले आता है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर हम लोग लिखते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और थर्ड पे हम लोग लिखते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो जो भी कैश का इनफ्लो है या आउटफ्लो, इनफ्लो मींस आप कैश रिसीव कर रहे हो और आउटफ्लो मींस आप जो है कैश का पेमेंट कर रहे हो। तो जो भी आपके कैश के इनफ्लो या आउटफ्लोज है उसका रिकॉर्ड यहाँ पे हम मेंटेन करते हैं। AS4, कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स ऑक्यूरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। तो इसके नाम से आपको समझ में आ रहा है कि जो भी बैलेंस शीट डेट और जिस दिन आप क्या कर रहे हो, बैलेंस शीट को पब्लिश कर रहे हो, अप्रूवल ले रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का AGM में, इस बीच में जो भी एक्टिविटीज, कोई भी अगर ऐसे इवेंट्स हुए जिससे आपके बैलेंस शीट के आइटम अफेक्ट कर रहे, तो उसका डिस्क्लोजर जो है यहाँ पर AS4 के अकॉर्डिंगली हमको करना होता है। AS5, net profit or loss for the period, prior periods item and changes in accounting policies। So it deals with the treatment of unusual and extraordinary items, prior period adjustments and consistency in the accounting policies। The next category, assets and contracts। These standards deal with the specific types of assets and long-term contracts। AS6, depreciation accounting, now it has merged with AS10,
इसी कैटेगरी में मैंने देखो नीचे AS 10 भी दिया है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो अब वहां पर मर्ज हो चुका है। तो AS 6 इज नाउ डिसकंटिन्यूड, इट इज बेसिकली was and it was about the systematic allocation of depreciable amount of assets over the useful life। तो जो भी depreciation चार्ज करना है उसके बारे में यहाँ पर चीजें थी। अब वो जो है AS 10 में शिफ्ट हो चुका है। AS 7 construction contract deals with the revenue and cost associated with long term construction contract। AS 9 revenue recognition, explain when and how revenue should be recognized। For example, revenue from sales is recognized when risk and rewards are transferred to the buyers। AS 10 property plants and equipment covers recognitions, measurement, depreciation and disposal of fixed assets। 26 intangible assets provides guidelines for identifying and valuing non-physical assets such as patents, copyrights and goodwill। Impairment of assets 28 requires companies to ensure that their assets are not overstated. If the recoverable amount of assets is less than the carrying amount, it should be written down। The third category, investments and transactions। AS 11, the effects of changes in the foreign exchange rates, covers how the accounting accounts for transactions in foreign currencies and how टू ट्रांसलेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द फॉरेन ऑपरेशन। अगर आपका बिजनेस फॉरेन कंट्रीज में है तो वहां से आपको फॉरेन करेंसीज रिसीव होते हैं, तो उसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, उसका एक्सचेंज किस तरह से करना है, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस का ट्रीटमेंट कैसे करना है, ये सारी चीजें यहाँ पर कवर होती है AS 11 के अंदर। AS 12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स, if you are receiving any government grants, so उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, that will be covers under AS 12। AS 13 accounting for investments, जिससे भी टाइप से आपके इन्वेस्टमेंट है, वेदर इट इज करंट इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इसका वैल्यूएशन, इसका रिपोर्टिंग, ये सब चीजें जो है यहाँ पर AS 13 में कवर हो जाती है। अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन, दैट इज AS 14, इज प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग मेथड्स फॉर मर्जर और एक्विजिशन, इधर पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड और परचेज मेथड, दोनों भी मेथड्स का जो है यहाँ पर हम लोग ये दोनों भी मेथड का डिटेल्ड वर्जन जो है यहाँ पर AS 14 में हमको देखने मिल जाता है। AS 15 एम्प्लॉइज बेनिफिट डील्स विद शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म एम्प्लॉइज बेनिफिट सच एज ग्रेचुटी, पेंशन, लीव एनकैशमेंट और जितने भी बेनिफिट्स है वो सारे बेनिफिट्स का ट्रीटमेंट हमको यहाँ पे AS 15 में मिलता है। बोरोइंग कॉस्ट AS 16 स्पेसिफाइज व्हेन द बोरोइंग कॉस्ट कैन बी कैपिटलाइज्ड इंस्टेड ऑफ एक्सपेंस इमीडिएटली। AS 19 लीज, it's distinguish between the financial lease and operating lease and explain their accounting treatment by both lessor and lessee। The fourth category, reporting and disclosure, very first AS 17 segment reporting requires businesses to report financial information separately for different business segments और geographical areas। यहाँ पे आपका क्राइटेरिया होता है 10% का, अगर आपका बिजनेस किसी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन से इट्स मोर देन योर 10% ऑफ योर टर्नओवर, तो उस रीजन का अलग से आपको जो है सेगमेंट रिपोर्टिंग करना है। द सेम अगर आपका कोई बिजनेस प्रोडक्ट जो है वो 10% से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है आपके टर्नओवर के, तो उसके लिए भी आपको बिजनेस सेगमेंट अलग से उसका रिपोर्ट डिस्क्लोज करना होता है। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स, इट्स मैंडेट डिस्क्लोजर ऑफ ट्रांजेक्शन विद द रिलेटेड पार्टीज, दैट इज सब्सिडरी, की मैनेजमेंट पर्सोनल, टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अनएथिकल डीलिंग। किसी एक पार्टी से अगर बार बार आपका डीलिंग होता है, फॉर एग्जांपल के तौर पे है ना, हम लोग बात करते हैं कि ल्यूमिनस है, एमरॉन है और भी बहुत सारी कंपनीज है जो कि बाइक के लिए बैटरीज मैन्युफैक्चर कर रही है, बट हीरो वाला जो अपने बाइक में क्यों हमेशा एक्साइड के बैटरीज लगा रहा है, सो दिस इज व्हाट रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, क्यों बार बार इसी के पास से ही बैटरीज परचेज करता है। टायर, क्यों MRF के टायर लगा रहे हैं, और भी तो है टायर, TVS का टायर है, मिशेलिन का टायर है, तो दूसरे टायर्स क्यों नहीं यूज हो रहे यहाँ पर। सो दिस इज व्हाट रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर व्हिच कम्स अंडर AS 18। AS 20, AS 19 लीजेस, जो कि ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर दिया है इन्वेस्टमेंट एंड थर्ड कैटेगरी में। AS 20 EPS, अर्निंग पर शेयर, गाइड्स हाउ टू कैलकुलेट एंड present EPS, it is very important indicators for investors। Then 21 consolidated financial statements, अगर आपके सब्सिडरी कंपनीज है तो आपको एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होता है, इससे रिलेटेड जितने भी रूल्स रेगुलेशंस है वो यहाँ पर डील करता है 21 में। 22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम,
explains treatment of current tax and the deferred tax arising due to timing difference. 23. Accounting for investment in associates in consolidated financial statement. It deals with how to account for investments in associated companies using the equity method. 24. Discontinuing operations require disclosure and separate reporting of part of business that are planned for closure or sale. 25. Interim financial reporting lays out the minimum content and the principle of preparing quarterly or half yearly financial reports. 27 की बात करें तो यहाँ पे है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर. इट कवर द रिकॉग्निशन मेजरमेंट एंड डिस्क्लोजर ऑफ कंपनीज इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर्स ओनली. 29. Provisions, contingent liabilities and contingent assets. 30, 31 and 32. It is recognition and measurement, financial instruments, recognition, measurements, financial instruments, presentation and disclosure. So now next we'll move to IFRS or Indian Accounting Standards, that is IND-AS. These are accounting standards converge with IFRS, that is International Financial Reporting Standard, designed for improved global transparency, comparability and reliability in the financial reporting. मैंने ऑलरेडी बोला कि IFRS का जो रोल है कि ग्लोबल लेवल पे सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो एक यूनिफॉर्म हो. सो हमने क्या किया, IFRS को मैच करते हुए यहाँ पे हमने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में मॉडिफिकेशन किया. दैट इज व्हाट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स IND-AS. वेरी फर्स्ट IND-AS 101. यहीं पे जब IFRS पढ़ोगे तो IFRS 101 ऐसे. So IND-AS 101, first time adoption of Indian accounting standards, provides guideline for entities adopting IND-AS for the first time. It helps in the transition from the previous GAAP, that is GAAP, to IND-AS, ensuring comparability. 102. Share-based payment prescribe accounting for employee shares, options and other equity-based payment, including valuation and recognition of expenses. 103. Business combination, which deals with the merger and acquisitions, requires the use of purchase method and fair value accounting for assets and liabilities acquired. 104 की बात करें तो it's insurance contract. It's provide temporary guidance or the accounting for insurance contract until a more comprehensive IFRS 17 is adopted. तो जब तक ये नहीं था IFRS 17 तब तक हम लोग जो इससे काम चला रहे थे. 105. Non-current assets held for sale and discontinued operations. Guide how to report assets that are intended to be sold and segments of business that are being discontinued. जो भी मेरा बिजनेस का सेगमेंट डिसकंटिन्यू करना है या जिसको सोल्ड करना है उसके बारे में सारा डिटेल, उसका अकाउंटिंग कैसे होगा, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, ये सब 105 में हमको मिल जाता है. 106 की बात करें तो दिस इज व्हाट एक्सप्लोरेशन फॉर एंड इवैल्यूएशन ऑफ मिनरल्स resources. So though it applies to entities involved in mining or oil explorations, deals with the cost and accounting during the early stage exploration. 107. Financial instruments disclosure specifies disclosures related to risk from financial instruments, enhancing transparency. 108. Operating segments require reporting of business segments based on the internal reports used by the management to assess the performance. 109. Financial instruments covers classifications, measurements, impairment and hedge accounting of financial instruments like loan, investments, derivative, etc. 110. Consolidated financial statements. Already अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जब बताया था वहां पे मैंने इस चीज को कवर किया था. कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अगर आप जो है सब्सिडरी कंपनीज है तो आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना होता है. उससे रिलेटेड सारा ट्रीटमेंट जो यहाँ पे हमको कवर्स हो जाता है. जॉइंट अरेंजमेंट, इट्स डिफाइंड अकाउंटिंग फॉर जॉइंट ऑपरेशंस एंड जॉइंट वेंचर्स based on the classification is on rights and obligations rather than the legal structure, and uses of equity method or proportional consolidated based on the arrangement. 112. Disclosure of interest in other entities requires detailed disclosure about the interest in subsidiaries, joint arrangement, associates, unconsolidated structures entities, provides insights into the risk
and financial efforts of this interest. 113 fair value measurement establish a single framework for measuring the fair value and requires use of market based measurements. A three level hierarchy, level 1 जो है that is quoted price, level 2 जो है that is observable data and level 3 is unobservable data. 114 की बात करें तो रेगुलेटरी डिफरल अकाउंट, it allows companies to continue certain accounting practices for regulatory deferral accounts during the transitions to IND-AS, primarily used by the entities is regulated industries like utilities. 115 की बात करें रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विथ कस्टमर, यहाँ पे जो है 5 स्टेप मॉडल फॉलो किया जाता है. स्टेप नंबर 1 जो है दैट इज आइडेंटिफाइंग द कॉन्ट्रैक्ट, स्टेप 2 आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस, स्टेप 3 डिटरमाइन ट्रांजैक्शन प्राइस, स्टेप 4 allocate price to obligations and step 5 recognize revenue when the performance obligation is satisfied. तो इस तरह से 5 स्टेप यहाँ पर दिए हुए. 116 is leases, now it is replaced with IND-AS 17. So here leases must recognize most leases on the balance sheet and right of use of assets and lease liability, aims to improve transparency by eliminating off balance sheet leasing. 17 ऑलरेडी मैंने बोला कि इट इज जो 116 को जो है इससे रिप्लेस किया है. अब यहाँ पर फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज दोनों की हम लोग बात करते हैं. 18 इट्स रेवेन्यू. 115 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर्स, ये जो है अब रिप्लेस हो चुका है. 18 में जो है ये सारे ऑल टाइप्स ऑफ रेवेन्यूज हमने यहाँ पर एड अप कर दिया है. सो इट्स कवर्स सेल ऑफ गुड्स, rendering of service and interest, royalties and dividends. 19 employees benefit deals with all forms of employees compensation, whether this short term benefits, post employment benefit या कोई long term benefit की बात है. short term में wages, bonuses, paid leaves ये सब चीजें आ जाएगी. post employment में pension, gratuities ये सब आ जाएगा. ठीक है. then 20 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस, गवर्नमेंट से अगर आपको कोई ग्रांट मिल रहा है, कोई असिस्टेंस मिल रहा है, इस सब का डिस्क्लोजर इसके IND-AS 20 के अकॉर्डिंगली करना है आपको. 21 द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, इट इज अप्लाइज टू द कंपनीज विद फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शंस, फॉरेन ऑपरेशंस और यूज ऑफ फंक्शनल करेंसीज. तो ये सब अगर है फॉरेन में आपके ब्रांचेस है तो आप फॉरेन करेंसीज में डील हो रहा है, या आप फॉरेन के साथ जो आपका ट्रांजेक्शन है तो वहाँ पे फॉरेन करेंसी में डील हो रहा है, तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का ट्रीटमेंट कैसे करना है एंड ऑल ये सब चीजें यहाँ पे आ जाती है. 23 is borrowing cost, require capitalization of borrowing costs that are directly attributes to acquisition, construction or production of qualifying assets. Other borrowing costs are expense in the period incurred. 24 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया AS समझाते वक्त. देन IND-AS 26 अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग बाय द रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान. It applies to retirement funds, that is pension funds, etc. It's required them to prepare separate financial statement emphasizing disclosure of plans, obligations, assets and performance. 27 की बात करें तो separate financial statements applies when the entity choose to present separate financial, covers accounting for investment in subsidiaries, joint ventures and associates in such statement. 28 की बात करें so it's investment in associates and joint venture, prescribe the use of equity methods to account for investment in associates and joint ventures. Uh, 29 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमीज. जब भी इकोनॉमी का जो रोल है, अगर ये हाइपर इन्फ्लेशन है मतलब बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन अगर है तो यहाँ पे प्राइस लेवल जो है वो चेंज हो जाता है. एंड प्राइस लेवल चेंज होने की वजह से आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है इसके जो फिगर्स है वो रियल फिगर हमको नहीं मिल पाते. सो इस यहाँ पर जो आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है और उसमें हमको इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए उसको रिवैल्यूड करना होता है. 32 की बात करें तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स प्रेजेंटेशंस ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है. AS एक्सप्लेन करते वक्त अर्निंग पर शेयर ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड. इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अगर आपको जो है क्वार्टरली या हाफ ईयरली अगर आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे हो तो उसका
रिपोर्टिंग किस तरीके से होगा, अगेन इट इज डिस्कस इन 34. इम्पेयरमेंट ऑफ assets already discussed. Provision contingent liabilities, contingent assets already discussed. Intangible assets already discussed. Investment property again discuss हो चुका है. Agriculture, it applies to accounting for biological assets, that is livestock or crops, and agriculture produce at the point of harvest. Measures at the fair value less estimated cost to sell. नाउ हियर मैंने यहाँ पे जो एक ओवरव्यू दे दिया है सारे IND-AS का. सो IND-AS 101 से 116 इट्स वेरियस स्टैंडर्ड्स कवरिंग कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंटिंग टॉपिक्स. फर्स्ट टाइम अडॉप्शन 101, रेवेन्यू रिकॉग्निशन 115, लीजेस 116, है ना. तो ये सब चीजें यहाँ पे आ जाती है. 1110 से लेके 114 की बात करें तो इट इज कंसोलिडेशन एंड फेयर वैल्यू की बात किया यहाँ पे इन्होंने. और 120 जो है ये इट इज अकाउंटिंग फॉर सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट. ये हमेशा जो है रिकॉग्नाइज हमेशा जो इंक्लूड नहीं होता है, बट इसको रिकॉग्नाइज करना है. ये अभी हमने जो ऑलरेडी डिस्कस किया यहाँ पे कहीं पे भी मैंने इसका जिक्र नहीं किया था. इट अप्लाइज स्पेसिफिकली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल में जो ये अप्लाई होता है. Thank you so much for watching this session on bookkeeping and accountancy, especially if you are preparing for the exams like UGC NET or SET in commerce. I truly hope that today's content helped clarify some key concepts and made your learning journey a little easier. है ना. अगर यहाँ तक सब कुछ समझ में आया है आपको, सो लाइक बटन इज देयर, शेयर्स और सब्सक्राइब, बेल आइकन वगैरह सब प्रेस कर दो. इन केस कुछ भी अगर डाउट रहता है आपको, सो कमेंट बॉक्स पे आप डाउट queries raise कर सकते हो. I will personally try to solve your queries. Thank you so much.